السلام علیکم دوستو، میں محمد نوشاد عالم ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ میں آپ کا صمیم قلب سے استقبال ہے۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے حروف تہجی اور اس کے اقسام کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ تفصیل کے ساتھ حرکات و سکنات اور مخارج کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ یہ مشقی سوالات نہایت ہی اہم ہیں، اس لیے اسے حل کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح ہندی میں ماترائیں ہوتی ہیں، ہر سئی درگئی ہر سو درگو، اے او او وغیرہ وغیرہ، اور انگلش میں مارکس آف واویل پوائنٹس ہوتے ہیں جسے اے ای آئی او یو کہا جاتا ہے، یہ واویل ہیں، اور جب اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا نام ہو جاتا ہے مارکس آف واویل پوائنٹس۔ تو اسی طرح اردو قواعد میں بھی ماترائیں ہوتی ہیں جسے حرکات و سکنات کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسے اعراب کہتے ہیں۔ تو دوستو، اعراب 8 ہیں: فتحہ، کسرہ، ضمہ، سکون، تشدید، تنوین، وقف، مد۔ تو آئیے دوستو تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہا جاتا ہے، جیسے الف زبر ا، بے زبر با وغیرہ۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ الف کے اوپر جو نشان بنے ہوئے ہیں وہ فتحہ اور زبر ہے۔ بے کے اوپر جو نشان بنے ہوئے ہیں، یہ بے کے اوپر دیکھیے نشان بنا ہوا ہے، وہ فتحہ ہے، یہ اس کو فتحہ کہا جاتا ہے۔ اور الف اور بے، الف اور بے یہ مفتوح ہوا، زبر کو مفتوح نہیں بولتے، زبر کو فتحہ، اور جس پر زبر ہو اسے مفتوح کہا جائے گا۔ تو یہاں پر الف اور بے یہ مفتوح ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کسرہ، کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر زیر ہو اسے مکسور کہا جاتا ہے، جیسے الف زیر ای، بے زیر بی وغیرہ۔ تو یہاں پر کسرہ جو ہے الف کے نیچے جو زیر ہے اسی کو کسرہ بولتے ہیں۔ یہ زیر، یہ کسرہ ہے۔ اسی طرح بے کے نیچے جو یہ زیر ہے یہ کسرہ ہے، اور الف اور بے یہ مکسور ہوا۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ جس پر پیش ہو اسے مضموم کہا جاتا ہے، جیسے الف پیش او، بے پیش بو وغیرہ۔ تو یہاں پر الف کے اوپر جو یہ نشان بنے ہوئے ہیں یہی ضمہ اور پیش کہلاتے ہیں۔ بے کے اوپر جو نشان بنے ہوئے ہیں اس طرح یہی ضمہ کہلاتے ہیں، اور الف اور بے یہ کیا ہو گئے؟ مضموم۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ سکون، سکون جزم کو کہتے ہیں، اور جس پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے الف بے زبر اب۔ تو یہاں پر بے پر جو نشان بنا ہوا ہے، دیکھیے یہ بے ہے، اس کے اوپر جزم کا نشان بنا ہوا ہے، تو بے کے اوپر جو یہ جزم کا نشان ہے یہی سکون کہلاتا ہے، اور پورا یہ بے کہلاتا ہے ساکن۔ پانچواں ہے تشدید۔ تشدید کی علامت یہ ہے، اس کو
तशदीद की अलामत ये है, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 बार पढ़ा जाता है, उसमें पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होता है। मुतहर्रिक का मतलब वो हुरूफ होते हैं जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो। जैसे अव्वल, आप अव्वल पर गौर कीजिए। अव्वल की तख्ती करते हैं। तख्ती का मतलब होता है जिसे हिंदी में छंदी संधि विच्छेद या टुकड़े टुकड़े करना, इसे कहा जाता है तख्ती। तो अव्वल की हम तख्ती करते हैं। तो अव्वल बना है अलिफ ज़बर आ, वाव पर जज़म, फिर वाव ज़बर वा, फिर लाम साकिन। आप गौर कीजिए कि 2 वाव, पहला अव्वल में पहला वाव क्या है, साकिन है, और दूसरा वाव क्या है, ये मुतहर्रिक है। तो जिस हर्फ पर तशदीद होगी तो उसका पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होगा। इस दोनों वाव को मिलाकर एक कर दिया गया और उस पर तशदीद की अलामत दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनवीन। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन, और जिस हर्फ पे तनवीन हो उसको मुनव्वन कहते हैं। जैसे अलिफ 2 ज़बरन, बे 2 ज़ेर बिन, ते 2 पेश तुन। तो यहाँ अलिफ के ऊपर जो 2 ज़बर की अलामत बनी हुई है वो तनवीन है। बे के नीचे जो 2 ज़ेर है वो तनवीन है। ते के ऊपर जो 2 पेश है वो तनवीन है। लेकिन अलिफ और बे और ते को मुनव्वन कहेंगे। इसी तरह तशदीद जिस पर होता है उस हर्फ को मुशद्दद कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही वाज़ेह है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ़। हरूफ साकीन के बाद जज़्म को वक्फ़ और उस जज़म वाले हर्फ को मौकूफ़ कहते हैं। जैसे सर्द, दस्त। बहुत से लोग वक्फ़ और सुकून में धोखा खा जाते हैं, इसको मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ है इसमें सर्द। सर्द कैसे लिखते हैं, सीन ज़बर सा, रा पर जज़म और दाल पर जज़म। तो वक्फ़ की तारीफ़ यह है कि हुरूफ़ साकिन के बाद जज़म को वक्फ़। हुरूफ़ साकिन, यहाँ देखिए ये रे जो है ये हुरूफ़ साकिन है, और उसके बाद जो जज़म आया है दाल पर जो जज़म, तो इस जज़म को वक्फ़ कहते हैं। पहले वाले जज़म को वक्फ़ नहीं कहते, पहले वाले जज़म को सुकून कहा जाता है। और वक्फ़ उस जज़म वाले हर्फ को मौकूफ़ कहते हैं। तो यहाँ दाल पर जज़म है और साकिन के बाद है, तो ये दाल हो गया मौकूफ़, और दाल के ऊपर जो जज़म है वो वक्फ़ हो गया, और रे के ऊपर जो जज़म है ये सुकून हुआ, और रे क्या हो गया, साकिन। तो अगर इसका हिज्जे करेंगे तो यूँ करेंगे कि सीन रे ज़बर सर और दाल माकूफ़, ये इसका हिज्जे हुआ। इसी तरह दस्त पर भी आप गौर कीजिए, इसमें सीन पर भी जज़म है, ते पर भी जज़म है, लेकिन सीन पर जो जज़म है उसे सुकून, और ते पर जो जज़म है उसे वक्फ़ कहते हैं। और सीन होगा साकिन और ते होगा मौकूफ़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मद की अलामत ये है, मद की अलामत ये है, मद को खींच कर पढ़ा जाता है। दरअसल 2 अलिफ मिलाकर पढ़ने को मद कहते हैं, और अलिफ को ममदूदा, जैसे आम, आज वग़ैरह। तो अगर आम की हम तख्ती करते हैं तो यह है अलिफ ज़बर आ, फिर दूसरा अलिफ जो है साकिन, फिर ये आम मीम। 2 अलिफ को एक करके उसके ऊपर मद की अलामत दे दी गई है, तो ये हो गया आम। और ऐसे अलिफ को अलीफ़ ममदूदा कहते हैं।
तो जिस अलिफ पर मद हो तो उस अलिफ को ममदूदा कहा जाता है। तो यहाँ आम में, आज में अलिफ ममदूदा है। एक चीज़ का ज़िक्र यहाँ और कर दूँ, एक अलिफ अलिफ मकसूरा भी होता है जिसे कम खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे ईसा, यहाँ देखिए ये के ऊपर जो खड़ा ज़बर है इसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। इसी तरह देखिए मूसा, यहाँ भी ये के ऊपर जो खड़ा ज़बर है इसे अलिफ मकसूरा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। हर ज़बान में उसका एक मखरज होता है। जिस तरह हिंदी ज़बान में उच्चारण स्थान आप पढ़े होंगे, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, कहीं तालव्य स, कहीं मूर्धन्य स, कहीं दंत स। तो ये सब जो बोल रहे मूर्धन, दंत, तालव्य, ये क्या है? उसके उच्चारण स्थान है। इसी तरह इंग्लिश में फोनेटिक्स होता है। तो जिस तरह इंग्लिश में फोनेटिक्स होता है, हिंदी में उच्चारण स्थान होता है, उर्दू में भी मखरज होते हैं। मखरज का लुग़वी माना होता है निकलने की जगह, और मखारिज ये मखरज की जमा है। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो उर्दू में मखारिज कितने हैं? 4 हैं। यानी मुंह के ऐसी 4 जगहें हैं जहां से उर्दू हरूफ तहज्जी का तलफ़ुज़ होता है। वो 4 जगह कौन है? हलक, खुन्क, तालू और होंठ। चलिए इसको तफसील से जानते हैं। हरूफ हलकी, जिसे हिंदी में कंठ्य वर्ण और इंग्लिश में गटलर बोला जाता है। तो हरूफ हलकी, जो हरूफ हलक से निकलते हैं उसे हरूफ हलकी कहा जाता है। यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, अरबी वाला ये हरूफ हलकी नहीं है। अरबी में तो हरूफ हलकी 6 ही होते हैं, लेकिन उर्दू में हरूफ हलकी 9 हैं। अलिफ, हे, खे, ऐन, गैन, क़ाफ, काफ, गाफ, है। ये कुल मिलाकर 9 है, जिसे हरूफ हलकी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हरूफ खुनकी, बाज़ लोग इसे खनकी भी पढ़ते हैं, जो गलत है। खुनक माना होता है तालू। तो इसका सही तलफ़ुज़ है हरूफ खुनकी। जैसे हिंदी में तालव्य होते हैं, यानी वो हरूफ जो तालू से अदा होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में प्लेटल्स होते हैं, यानी वो हरूफ जो तालू से अदा होते हैं। इसी तरह उर्दू में वो हरूफ जो तालू से अदा किए जाते हैं उसे हरूफ खुनकी कहा जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। जो हरूफ तालू से निकलते हैं उसे हरूफ खुनकी कहा जाता है। जैसे जीम, चे, जाल, जे, डाल, रे, शीन, ज़ा, ज़ो, ये, रे, टे, नून, लाम, ये सब के सब हरूफ खुनकी हैं। तालू को उर्दू में हरूफ हलकी के बाद और दांत के पहले जो जगह है मुंह की, उस सब को तालू ही बोला जाता है उर्दू में। अगरचे अरबी में उसकी कैटेगरी वाइज अलग अलग हिस्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरूफ असनानी, सिन्न मना होता है दांत, और इंग्लिश में इसे डेंटल्स बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे डेंटल डॉक्टर, यानी दांत का डॉक्टर। इसी तरह दंतय हिंदी में बोला जाता है। जैसे आप सुने होंगे दंत मंजन, यानी दांत का मंजन। तो हरूफ असनानी, जो हरूफ दांत से निकलते हैं, जैसे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो, ये वो हरूफ हैं जो दांत से निकलते हैं, इसलिए इसे हरूफ असनानी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरूफ शफवी, ओष्ठ है, ओष्ठ मना होता है होंठ। लोबियल्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो हरूफ शफवी, शफवतुन मना होता है होंठ अरबी में। तो इसीलिए जो हरूफ होंठ से निकलते हैं उसे हरूफ शफवी कहा जाता है। जैसे बे, पे,
फे, मीम, वाव, ये वो हरूफ हैं जो होठ से निकलते हैं, इसलिए इसे हरूफ शफ़वी कहा जाता है। यहाँ तक तो मखारिज का ज़िक्र हो गया। अब आगे कुछ मुतफ़र्रिक़ात मसले हैं जिसे हल किया जाएगा। चलिए उसे भी। वाव की 3 हालत है, और ये जितनी भी हालत है ये पढ़ने के एतबार से है, लिखने के एतबार से नहीं। वो 3 हालत है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। तो आइए वाव मारूफ के बारे में बात करते हैं। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे नूर, खूब, यहाँ देखिए वाव से पहले पेश है, इसमें खूब में भी वाव से पहले पेश है, और इसे खूब खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए इस वाव को वाव मारूफ कहा जाता है। दूसरा है वाव मजहूल, जिस वाव को थोड़ा खींचा जाता है, ज़्यादा नहीं खींचते हैं उसमें। जैसे ज़ोर, शोर, मोल, ये वो वाव है जिसे बहुत ही कम खींचा जाता है, इसलिए इसे वाव मजहूल कहते हैं। इसी तरह वाव मादूला, वो वाव जो सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जैसे देखिए ख्वाहिश, दरख्वास्त, यहाँ अलिफ से पहले वाव है, लेकिन इसको ख्वाहिश या दरख्वास्त पढ़ना गलत है, बल्कि ये वाव साइलेंट हैं, पढ़ा नहीं जाएगा। इस वाव को हज़फ कर दिया गया है पढ़ने में, इसको पढ़ेंगे ख्वाहिश, दरख्वास्त। कुछ लोग वाव अत्फ़ को भी इसी हालत में गिनते हैं और ये कहते हैं कि वाव की 4 हालत है, लेकिन मेरे हिसाब से वाव अत्फ़ ये इल्म हिजा में बहस नहीं होगी, वाव अत्फ़ की बहस इल्म सर्फ़ में होगी। है की 2 हालत है, हाय मलफूज़ी, हाय मुख्तफ़ी। बस लफ्ज़ पर गौर कीजिए। मलफूज़ी यानी जिसका तलफ़ुज़ हो, तो पढ़ने में जिस हा का तलफ़ुज़ होता हो उसे हाय मलफूज़ी कहते हैं। जैसे सियाह, शाह, जाका, देखिए इसमें हा का तलफ़ुज़ हो रहा है, इसलिए ऐसे हा को हाय मलफूज़ी कहते हैं। हाय मुख्तफ़ी, खफ़ी के माना होता है छुपा हुआ, तो हाय मुख्तफ़ी का मतलब हुआ कि पढ़ने में जिस हा का तलफ़ुज़ ना होता हो। जैसे बिरादराना, क़िस्सा, हिस्सा, देखिए लिख तो रहे हैं हा, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। हा की आवाज़ आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, अलिफ की आवाज़ आ रही है। बिरादराना, क़िस्सा, हिस्सा, तो ऐसे हा को हाय मुख्तफ़ी कहा जाता है। ये की 2 हालत है, याए मारूफ, याए मजहूल। याए मारूफ में आवाज़ नीचे की ओर खींच कर पढ़ी जाती है। जैसे कफ़ील, शकील, यहाँ देखिए कफ़ील में या से पहले फ़े को खींच कर पढ़ रहे हैं, शकील में ये से पहले काफ़ को खींच कर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस या को याए मारूफ कहा जाता है। याए मजहूल, जिस या से पहले ज़ेर हो और उसको ज़रा ऊपर की ओर खींच कर पढ़ा जाए। जैसे शेर, देर, लफ्ज़ पर गौर कीजिए, शीर और दीर पढ़ेंगे तो ये याए मारूफ हो जाएगा, लेकिन ज़रा आवाज़ को ऊपर की ओर खींच कर पढ़ेंगे, शेर, देर, तो इस या को याए मजहूल कहा जाता है। इसी तरह नून की 2 हालत है, नून ज़ाहिर, नून बातिन। नून बातिन को नून गुन्ना भी कहते हैं। तो नून ज़ाहिर, जिस नून का इजहार साफ तौर पर होता हो, जैसे जहान, शान, आन, बान, इन चारों लफ्ज़ों में नून का तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिरी और साफ तौर पर हो रहा है, इसलिए इस नून को नून ज़ाहिर कहते हैं। नून गुन्ना, गुन्ना के माना ही होता है नाक से आवाज़ निकालना, तो जिस नून का तलफ़ुज़ नाक से होता हो, जैसे पंखा, वहाँ, कहाँ, ऐसे नून को नून गुन्ना कहते हैं। जब नून गुन्ना लफ्ज़ के आखिर में होता है तो वहाँ पर नुक्ता नहीं होता, अगर लफ्ज़ के बीच में हो तो वहाँ नून पर नुक्ता होता है, लेकिन वो नून गुन्ना होता है, यानी उस नून को नाक से
बोलते हैं। जैसे पंखा में देखिए नून बीच में है, वहाँ में यहाँ नून गुन्ना आखिर में है, कहाँ में नून गुन्ना आखिर में है। तो ये थे दोस्तों आज के दर्स। अब यहाँ से हम लोग मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। तो बिला ताख़ीर मश्क़ी सवालात को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़तहा किसे कहते हैं? ज़ेर को, पेश को, ज़बर को, जज़म को? तो इसका सही जवाब है फ़तहा ज़बर को कहते हैं। तो जीम इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मफ़तूह हर्फ की पहचान कीजिए। बेज़ेर बी, ते साकिन, से पेशु, जीम ज़बर जा। तो इसका सही जवाब होगा जीम ज़बर जा। तो दाल इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरकात व सकनात कितने हैं, यानी एराब कितने हैं? 9, 8, 10, 5। तो एराब कितने हैं? 8 हैं। बे इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जिस पर ज़बर हो उसको क्या कहते हैं? मफ़तूह, मकसूर, मजज़ूम, साकिन। जिस पर ज़बर हो उसको मफ़तूह कहा जाता है। इसका अलिफ सही जवाब है। मकसूर किसे कहते हैं? ज़ेर को, जिस पर ज़बर हो, जिस पर ज़ेर हो, कसरा को। जिस हर्फ पर ज़ेर हो उसे मकसूर कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा जीम। बे ज़ेर बी में बे क्या है? कसरा, मकसूर, मफ़तूह, मजज़ूम। तो बे ज़ेर बी में बे क्या है? मकसूर है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बे। ज़म्मा किसे कहते हैं? ज़बर को, ज़ेर को, जज़म को, पेश को? बहुत आसान सवाल है। ज़म्मा पेश को कहते हैं। मज़मून की पहचान कीजिए। अलिफ पेश का निशान, बे दाल पेश दू, जीम रेज़ेरी दाल जीम ज़बर जा। तो इसका सही जवाब है बे दाल पेश दू। साकिन किसे कहते हैं? सुकून को, जिस पर ज़ेर हो, जिस पे जज़म हो, मौकूफ से पहले सुकून वाले हर्फ को। इसका सही जवाब है दाल। मौकूफ से पहले सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जीम इसका जवाब नहीं होगा कि जिस पर जज़म हो, इसलिए वक्फ में भी तो जज़म होता है। किस लफ्ज़ में तनवीन का इस्तेमाल हुआ है? फ़ौरन, साबुन, फागुन, रोशन। तो इसका सही जवाब है अलिफ। फ़ौरन में तनवीन का इस्तेमाल हुआ है। तशदीद की अलामत क्या है? अलिफ, बे, जीम, दाल।
اس کا صحیح جواب ہے جیم. یہ الف کے اوپر جو 3 شوشے کا نشان بنا ہوا ہے یہی تشدید کی علامت ہے. مشدد حرف کی پہچان کیجیے. عقل، چپل، دلدل، مرمر. تو اس کا صحیح جواب ہے بے. عقل میں بھی مشدد حرف نہیں، نہ دلدل میں نہ مرمر میں. اس کا صحیح جواب ہوگا چپل میں جو پے ہے وہ پے مشدد ہے. درخت میں موقوف حرف کون سا ہے؟ دال، رے، خے، تے. تو اس کا صحیح جواب ہے تے. یہ موقوف ہے، خے موقوف نہیں، خے یہاں پہ ساکن ہے. کس لفظ میں الف ممدودہ کا استعمال ہوا ہے؟ شام، نام، عام، کام. تو اس کا صحیح جواب ہے عام. جیم اس کا صحیح جواب ہے. عیسیٰ میں الف کون سا ہے؟ ممدودہ، مقصورہ، متحرک، ساکن. تو اس کا صحیح جواب ہے مقصورہ. ہم بتا چکے ہیں الف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ممدودہ اور مقصورہ. مقصورہ والے الف میں کھڑا زبر کا نشان ہوتا ہے اور ممدودہ میں اس کا نشان اس طرح کا ہوتا ہے. حروف حلقی کی پہچان کیجیے. جیم، دال، رے، قاف. تو اس کا صحیح جواب ہے قاف. قاف حروف حلقی ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 5، 8، 9، 6. تو اس کا صحیح جواب ہے کہ اردو میں حروف حلقی 9 ہے. جیم اس کا صحیح جواب ہے. جو حروف دانت سے نکلتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسنانی، شفوی، حلقی، خنکی. اس کا صحیح جواب ہے اسنانی. جیم کون سا حرف ہے؟ اسنانی، شفوی، خنکی، حلقی. تو اس کا صحیح جواب ہے جیم، خنکی. واو معدولہ کی پہچان کیجیے. نور، شور، خواہش، چور. تو اس کا صحیح جواب ہے خواہش میں واو معدولہ کا استعمال ہوا ہے. تو جیم اس کا صحیح جواب ہوگا. واو مجہول کی پہچان کیجیے. نور، شور، خواہش، خوب. تو اس کا جواب ہے بے، شور. اس میں واو مجہول کا استعمال ہوا ہے. ہائے ملفوظی اور مختفی کی پہچان کیجیے. سیاہ، برادرانہ، قصہ، حصہ، جانکاہ. تو یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں پہچان کرنا ہے کون ملفوظی ہے کون مختفی ہے. چلیے ہم بتا دیتے ہیں. سیاہ، سیاہ میں ہا کیا ہے؟ ملفوظی ہے. برادرانہ، قصہ اور حصہ، اس میں ہا کیا ہے؟ مختفی ہے. اور جاکاہ میں جو ہا ہے وہ ملفوظی ہے. یائے معروف اور مجہول کی پہچان کیجیے. زیر، دلیر، وزیر، شکیل، دیر.
تو زیر میں ہائے یائے مجھول ہے، دلیر میں بھی یائے مجھول ہے، وزیر میں یائے معروف ہے، شکیل میں یائے معروف ہے اور دیر میں یائے مجھول ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ نون ظاہر اور غنہ کی پہچان کیجیے۔ کون پہنچا وہاں، شان کہاں؟ کون میں نون ظاہر ہے، شان میں نون ظاہر ہے، پہنچا میں، وہاں میں اور کہاں میں نون غنہ کا استعمال ہوا ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا درس۔ یہاں اردو حصے کے جو 5 حصے بتائے گئے ہیں، اردو قواعد کے ایک حصہ علم ہجا پورا ہو گیا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہیں بھولیں گے۔ دوستو اگلے ویڈیو میں ہم علم صرف کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔